Hello students, welcome to MJC Learning. Today we are going to study chapter number 6 of bookkeeping and accountancy, that is dissolution of partnership firm. So let's begin. Student, in the previous video we have already learned the meaning of dissolution and what are the treatments in that particular chapter we're going to study, that we have already seen. So today we are going to start with the entries directly. First stage, very beginning or the first stage of the dissolution is transfer stage. Okay, what we need to transfer? We need to transfer all the assets and liabilities of the last year's past balance sheet. Okay, in the question they're gonna give us last year balance sheet, so we need to transfer all the assets and liability from there. So what will be the journal entry of transferring asset? Transferring, which means we are closing down the account of an asset from the balance sheet also. Okay, so जब भी whenever we wants to close down, so opposite effect देना पड़ता है. As we all know, asset carries debit balance. What will be the opposite effect? Asset को आपको credit करना पड़ेगा, and you are transferring these asset into realization account. So realization account will be debited. So our entry will become realization account debit to asset account. Student, in this particular chapter, in simple dissolution, mainly we need to make three ledger accounts, that is realization account, partners capital account and cash bank account. So the conclusion is, except cash bank, all the asset we need to transfer in the same form, which means realization के debit में सारे ही assets we need to write in their book value. Book value मतलब past year की जो आपके पास balance sheet है, same amount you need to copy down. Clear? Shall we proceed? Now the next is transferring liabilities into realization account. So what will be the journal entry, students? We need to close down all the liabilities from the balance sheet, past year balance sheet. So opposite effect क्या होगा? Liability carries credit balance. Opposite means all the liabilities को हमें debit करना होगा, तो all the liabilities will be debited and realization account will be credited. Let's see the entry. Sundry creditors account debit, bills payable account debit, bank overdraft account debit, outsiders loan except partner. If there is any loan except partner, that will transfer in the same form. An outstanding expense to realization account. We need to write all the liabilities and transfer all the liabilities like this only, students. Okay, except partners loan. If we have taken loan from the partners, except that loan, all the liabilities going to transfer credit side of the realization account. That is the main thing. Okay, shall we proceed? Now next is for transfer of provision. As we already know, okay, there are so many provision and reserve has been given in the balance sheet. What are they? What is the meaning of that? Now some provision past year we have kept aside and they are pending, that we need to transfer into realization account, and student, that will appear in the credit side, means liability side. तो सेम अपोजिट इफेक्ट देना है आपको, उसको डेबिट करना है. सो ऑल द प्रोविजन विल गोइंग टू बी डेबिटेड. नाउ जस्ट रीड द नेम. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, provision for depreciation, joint life policy reserve, provision for discount, contingency reserve, investment fluctuation fund. डरने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक आधे ही प्रोविज़न हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बट ऑल दी प्रोविज़न हैज़ टू बी डेबिटेड and realization will going to be credited, which means if this kind of provisions are appearing in the last year balance sheet, तो आपको
रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में उन प्रोविजंस को ट्रांसफ़र करना है. गॉट इट स्टूडेंट? शैल वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ accumulated profit. What is the meaning of accumulated profit? Accumulated profit is nothing but the last year's profit which we have kept aside or we have reserved for something, okay, for some activities. Now this reserve is nothing but a past year's profit, and this profit completely belongs to the partner, as we all know. So whatever the reserve, whatever the name of the reserve they have given us in the question, that reserve will going to be debited. Why? Because this reserve belongs to partners, and whenever the partner is getting any kind of profit or any benefits, so that is credited to partner's capital account. So just see the entry: general reserve account, reserve fund account, profit and loss account to partner's capital account. Got it student? If this kind of a profits you're seeing in the questions liability side, अगर liability side में आपको लास्ट ईयर की, पास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इन तीनों में से कोई भी नाम दिखते हैं, तो दीज आर द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, दैट इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट वी हैव केप्ट असाइड एंड दैट बिलोंग्स टू पार्टनर. तो एंट्री होगी दैट रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच मीन्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको इन रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करना है. शैल वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज अपोजिट, accumulated loss. Now some of the accumulated loss will going to appeared in the last year balance sheet. कहाँ पे? Asset side में. Asset side में आपको some of the accumulated loss दिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे. उनको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, विच मीन्स के लॉस ऑफ द बिजनेस. अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को बिलोंग करता है, सिमिलरली इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लॉस दैट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द पार्टनर. और कभी भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं. तो एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर डेबिट बैलेंस में हमें वो एक्यूमुलेटेड लॉस शो होता है तो. नेक्स्टली वी आर गोइंग टू सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. एज वी आर स्टडिंग द डिसोल्यूशन, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है. सो बिफोर एंडिंग अप वी नीड टू सोल्ड आउट ऑल आवर एसेट्स. Whenever we are selling the goods or asset, anything, we are getting a cash in return. So ultimately the cash is coming into the business. Whenever the cash is coming into the business, the cash bank account debit. One thing I have mentioned over here, that is selling price. Students, we need to see the selling price only. यहाँ पे आपको एसेट सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है. आप ये सोचोगे कि आपका बुक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट इज 70,000 एंड वाइल यू आर सेलिंग दोज गुड्स और वो पर्टिकुलर एसेट, तो यू गॉट दी लेसर अमाउंट. तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. नो, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. तो एंट्री विल बिकम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज हमें यहाँ इनकम हो रही है, हम कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न में ले पा रहे हैं गुड्स एसेट को सेल आउट करके. ओके स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है. आइदर वी कैन सोल आउट दीज एसेट्स और आइदर सम ऑफ द पार्टनर विल गोइंग टू टेक ओवर एनी ऑफ द एसेट. अगर उनको ऐसे लगा ये एसेट पर्टिकुलर एसेट है, यूज़फुल है, आई कैन टेक दिस, ठीक है, तो वो अपने घर भी लेके जा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. क्वेश्चन में आपको ऐसे भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे. सो वेन एवर वी ऑल नो दैट वेन एवर द पार्टनर इज टेकिंग ओवर समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज डेबिट, बिकॉज ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आपने एक चीज़ ध्यान दी, जब आप सेल करोगे
तो कैश बैंक अकाउंट विल गोइंग टू बी डेबिटेड, और जब आपका पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल गोइंग टू बी डेबिटेड. Clear students? Shall we proceed? Now next is payment of liabilities. After selling all the goods, after selling sold all the goods, हमें next क्या करना है? Next stage will be payment of the liabilities. आपकी जितनी भी outsider liabilities है वो हमें pay off करना है. Whenever you are making a payment to anybody, that is a clear expense of the business. Debit all expenses and losses. खर्चा है आपका, लॉस हो रहा है, आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ रहा है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. यहाँ भी सेम चीज़, जो एक्चुअल पेमेंट करोगे आप उस पर ही आपको रिकॉर्ड करना है. इफ़ क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का, टेक एन एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट इज़ 60,000, गॉट इट स्टूडेंट, और आपको उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया है, आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, आपको सिर्फ 50,000 ही पे करना है, तो हियर एक्चुअल अमाउंट आप 50,000 ही लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, 50,000 ही लिखना है आपको. कम ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो हमें यहाँ पे ध्यान नहीं रहना है. और कैश इज गोइंग आउट, वेन एवर यू आर मेकिंग द पेमेंट टू समबडी, द कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो अवर जर्नल एंट्री विल बिकम realization account debit to cash bank account. Shall we proceed? यहाँ भी दो केस है. either जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है दैट विल बी पे ऑफ बाय द फर्म, तो फर्स्ट एंट्री आएगी. इफ़ दैट आर डिस्चार्ज्ड बाय दी एनी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, अगर कोई पार्टनर उसे पे कर रहा है देन उस पर्टिकुलर केस में क्या एंट्री होगी? वेन एवर द पार्टनर इज पेइंग ऑफ दिस लाइबिलिटी. पहले तो ये समझना है कि हमारा एक्सपेंस तो है, लाइबिलिटी है, विच मीन्स के एक्सपेंस तो डेफिनेटली होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड पार्टनर्स इज द गिवर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गोइंग टू बी क्रेडिटेड. सो एंट्री विल बिकम स्टूडेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. शैल यू प्रोसीड? नेक्स्ट इज फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. अब तक हमने जो भी एक्टिविटी की है, वट एवर द प्रोसेस वी हैव डन टिल ईयर, उस प्रोसेस में, उसको करने की ड्यूरेशन में आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा. सो सिमिलर एक्सपेंस आपको एट ए टाइम उसी वक्त आपको पे ऑफ करना है. आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि हम बाद में करेंगे या हमारे पास पैसे नहीं है. यू नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस एक्सपेंस, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंस. ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन एक्सपेंस है तो खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. और एक्सपेंस पे कर रहे हो विच मीन्स द कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो टू कैश बैंक अकाउंट. हियर ऑल्सो वी नीड टू रिकॉर्ड द एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया होगा बिलो दैट बैलेंस शीट, वहाँ से सेम अमाउंट हमें लिखना है. गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by any of the partner, which means paid off by any of the partner. उसमें से one of the partner है जो कि वो realization expense पे कर रहा है. सेम होगा, expense तो always debit, तो realization account will be debited. और पार्टनर पे कर रहा है तो whoever be the giver of that expense, तो उसका नाम हम लिख देंगे टू कंसर्न कैपिटल में. हम वो पर्टिकुलर XYZ जो भी पार्टनर होगा दैट पार्टनर्स नेम विल गोइंग टू राइट. ठीक है, एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो एंड सो. सो एंट्री विल बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर होगा उसका नाम विल गोइंग टू राइट. Nextly students, treatment of unrecorded asset. In the question, in addition they're going to give you some extra information in which वहाँ पे आपको some of the information has been given about the unrecorded assets and unrecorded liabilities which you haven't recorded yet in the books of accounts. अब बिजनेस बंद हो रहा है, इतना टाइम नहीं है कि आप उसको वापस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, पूरा मेंटेन करो और फिर क्लोज डाउन करो. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो आपको डायरेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी सोल्ड आउट की. वंस आप सोल्ड आउट कर रहे हो वो एसेट,
तो आपको फर्स्ट तो कैश मिलेगा, दैट कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. जब भी पैसा आता है तो ऑलवेज कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड. सो कैश बैंक तो डेबिट होने वाला है. और आपको कहीं ना कहीं इनकम हो गई है, एसेट आपका बिका है, उसकी वजह से आपको इनकम हो रही है. तो जब भी इनकम होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है. तो जस्ट चेक इट आउट द एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ वैल्यू रियलाइज्ड, आपके बुक वैल्यू में वो अनरिकॉर्डेड एसेट का जो भी अमाउंट है वो आपको नहीं देखना है. आपको एक्चुअल व्हाट अमाउंट यू गॉट राइट नाउ, वैल्यू ऑफ द रियलाइज्ड दैट एसेट का कितना आपको अमाउंट मिला है वो आपको लिखना है. क्लियर स्टूडेंट? शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट इज इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर. माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपका ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट बिजनेस में पड़ा हुआ है जो आपके पार्टनर को पसंद आया और ही वांट्स टू टेक ओवर दैट एसेट फ्रॉम दी पार्टनर, उनको लेना है. सो फर्स्ट थिंग फॉर श्योर, पार्टनर लेके जा रहा है. यहाँ पे पार्टनर इज टेकिंग ओवर समथिंग, चाहे वो एसेट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर एज एन ड्राइंग्स. ठीक है. और ड्राइंग के अगर फॉर्म में आप देखोगे तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिटेड, तो दैट पर्टिकुलर पार्टनर गोइंग टू बी डेबिटेड. और आपको कहीं ना कहीं इनकम हुई है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. क्लियर स्टूडेंट्स? जब भी हमारा एसेट जाता है तो उसको रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, तो एंट्री विल बिकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? शैल वी प्रोसीड स्टूडेंट? नेक्स्ट इज इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. हमने लास्ट स्लाइड में अनरिकॉर्डेड एसेट के ट्रीटमेंट के बारे में देखा है, यहाँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़. अब कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होगी विच वी हैवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट वो हमें एक्चुअल में पे करना है. ठीक है. डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करके सारी चीज़ों को क्लोज डाउन करना है. सो हियर वी नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़. लायबिलिटी है तो ऑफकोर्स आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है. लॉसेस, और अगर आप पेमेंट करोगे लायबिलिटी का तो दैट कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो टू कैश बैंक अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पे ऑफ बाय द पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को पे करना चाहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहता है कि दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी आई विल गोना पे. ठीक है. इफ दिस काइंड ऑफ एंट्री कम्स इन द क्वेश्चन, तो क्या होगा? अगर लायबिलिटी है तो ऑफकोर्स आप पे कर रहे हो, आपको एक्सपेंस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन विल गोइंग टू बी डेबिटेड एंड पार्टनर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. सो एंट्री विल बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक सारी एंट्रीज क्लियर हुई. नाउ लेट्स जस्ट सी द परफॉर्मर फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट, कि एक्चुअल में आप इसको लेजर अकाउंट में कैसे लिखने वाले हो. सो ऑल द एसेट, फर्स्ट आई हैव गिवन द हियर नंबर. ओके. सो ऑल द एसेट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं लाइन से, सारे एसेट्स को आपको यहाँ पे लिख देना है. फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एंड एवरीथिंग वॉट एवर दे विल गोना गिव यू इन द क्वेश्चन, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. उसके बाद ऑल द लायबिलिटीज़ जो आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, वो सारी लायबिलिटीज़ आपको यहाँ पे लिखना है. बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट से ही आपको कॉपी करके यहाँ पे सेम अमाउंट लिखना है. आफ्टर दैट आपको जो मैंने प्रोविजंस बताए वो भी आपको सिमिलरली ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स. ओके. देन after that you will gonna receive the amount of asset. जो भी आप एसेट सोल्ड करोगे उसका आपका अमाउंट जो भी रिसीव होगा दैट यू विल गोइंग टू राइट ओवर यर थर्ड नंबर. देन पार्टनर्स अगर लेके जा रहे हैं तो फोर्थ नंबर क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको लिखना है. क्लियर? देन स्टूडेंट्स उसके बाद आपको पेमेंट करना है, पे ऑफ करना है सारी लायबिलिटीज़ को, और जितने भी आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको आपको पे ऑफ करना है, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट विल गोइंग टू बी ओवर. दिस इज़ द ओनली अकाउंट विच इज़ डिफरेंट
थोड़ा न्यू है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस लेजर फॉर्मेट। और बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आप ऑलरेडी अवेयर हो, आपने किया हुआ है एडमिशन में, और कैश बैंक अकाउंट से भी अवेयर हो। ओके स्टूडेंट, सो फ्रॉम द नेक्स्ट video we're gonna start with the sum. Okay, till then stay home, stay safe, thank you.